Assalamu alaikum, good afternoon and welcome to this match number 2 of the day. It's going to be Dedu Rangers taking on JK Police Warriors. Toss won by Dedu Rangers and their captain without any hesitation decided to bat first. Again Nazir in the combox would like to welcome my colleague, and this is JK Sports Time bringing you the ball by ball commentary. And JK Police Warriors almost out of the competition, just formalities remaining. When it comes to the pointers table, even Sultanas they're on their way back home, and I heard they both flight from Humhama to Baramulla territory. And coming back to this game, the two umpires in the middle, the two openers are also in the middle. And Nazir, you may go through the frame please first, and if you feel that it's okay, then I will say yes, and we'll have to wait and watch. And it's going to be Dedu Rangers batting first. Lush green outfield, sun is behind the clouds. It's overcast again on that portion, not here. It's fine here, it's pleasant here, but on that sky touching peak, it's overcast there, not here. And time for action. The two men in the middle, Sarshil Abbas and Basit Akbar, the same pair Dedus are gonna use in second match of the day. It's going to be Gawar Malla to open the attack, the man from line of defense in the middle to open the attack for Police Warriors. And it's going to be Sarshil on strike with a slip and a gully in place. First ball, and keeps it away onto the offside, but there is fielded, there is a man at point, so it is none for none in over number 1. अस्सलामुअलैकुम, स्वागत सभी श्रोताओं का। दूसरा मौका अपना पहली पारी और डडू की टीम में समय बल्लेबाजी कर रही है पुलिस वॉरियर्स के विरुद्ध। हालांकि शुरुआत हो चली है इस पहली पारी की। गौहर मल्ला ने गेंदबाजी प्रारंभ की है, सरशील अब्बास और बासित अकबर प्रारंभिक जोड़ी के रूप में। अगली गेंद गौहर की और धीमी गति की गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, जगह मिली थी स्ट्रोक खेलने की लेकिन संपर्क नहीं हुआ। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई बगैर किसी रन के। तो प्रारंभ दूसरे मुकाबले की पहली पारी और कश्मीर कप के अंतर्गत इस प्रतियोगिता का कुल मिलाकर ये 19वां मुकाबला वर्तमान स्थिति में चलता हुआ और खाता खोलना बाकी। 2 गेंदें फेंकी जा चुकी हैं। ये गेंद और इस बार वापस खेला बॉलर की दिशा में, अंपायर माजिदुरा ने बमुश्किल अपने आप को बचाया। गेंद ठीक साइड स्क्रीन की ओर, सीमा रेखा से बाहर, जस्ट मुखारा चौका। तो इस प्रकार से खाता खुला यहाँ डेडू रेंजर्स कश्मीर का। 4 सरशील के बल्ले से निकलने वाला ये चौका बगैर नुकसान के। पहला ओवर गौहर मल्ला ने आज गेंदबाजी प्रारंभ किया है जिनके पुलिस वॉरियर्स के लिए। और ऐसे में देखना होगा डेडू रेंजर्स ने अपना आज का दिन का जो पहला मुकाबला था वो जीत करके नए उत्साह के साथ इस दूसरे मुकाबले में इस बार पुल किया। ऑन साइड में गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रनों के लिए जस्ट मुखारा छक्का। 2 गेंदों से 10 रन बटोर लिए हैं या सरशील अब्बास ने। दोहरे अंकों में रन संख्या 10 पर पहुंची डेडू की। सरशील के बल्ले से ये छक्का। It's 10 for none in over number 1. A 4 and a 6. Here is Gawar Malla again to Sarshil Abbas. This one over mid off. Couple of bounces into the longer fence. Runs, 4 of them. Just Bukhara for 14 without loss in over number 1. Gawar Malla is straight away on the receiving end. He's taken on. It's 14 for none in over number 1. चौथा रन अब तक बन चुका है। 2 चौके 1 छक्का सरशील के बल्ले से। तेज तरार शुरुआत यहाँ सरशील द्वारा। अगली गेंद गौहर मल्ला राइट आर्म, ये गेंद और इस बार हालांकि लेगो स्टंप पे आती हुई गेंद को खेला जरूर, हालांकि उस ओर खिलाड़ी जा रहे हैं। जब तक वे गेंद को फेल करते हैं ऑन साइड में 1 रन पूरा किया, पलट कर तेजी के साथ दूसरा रन भी पूरा कर लिया। 2 रन और सरशील के खाते में, 2 रन डेडू रेंजर्स के खाते में। 16 रन संख्या पहले ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन बने यहाँ डेडू रेंजर्स कश्मीर के पहली पारी के आधार पर। Dedu Rangers batting first, 16 without loss. I think Nazir, it is to improve their net run rate. I think that's why they decided to bat first, and they will try to restrict the opponent side. And let's assume that and suppose that if they set 250, they will try to restrict them below 100 or around that, so that their net run rate will improve. And you know that net run rate will come into play because it's a league based tournament. 3 of them already out, but the 4 teams, one is already on top of the table, that's very fresh. Others may will tie up when it comes to the, okay dear,
I have Sheikh Nazir for you to entertain you, but I was talking about that few of the teams may tie up on points table when it comes to the net run rate. That will also come into play देखिए when they tie up on the points table. अगर नेट रन रेट की बात करें तो कहीं ना कहीं वो चीज़ ज़रूर आने वाले मुकाबले में देखी जा सकती है और उसका कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट ज़रूर रहेगा टीमों पे और उसको बेहतर करने की यहाँ कोशिश, जैसा कि आपने स्पष्ट कर दिया, वो प्रयास रहेगा डडू रेंजर्स का। और इन परिस्थिति में वो अब जाकर के दूसरे ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पहले ओवर में 16 बने, विकेट नहीं खोया। हालांकि पिछला मुकाबला डडू रेंजर्स ने जीता और वहाँ सुल्तान वॉरियर्स बारामुल्ला को पराजय का मुंह देखना पड़ा और अंततः वो प्रतियोगिता से बाहर हो गए। कुछ खास प्रदर्शन उनका नहीं रहा इस प्रतियोगिता में। हालांकि एक मुकाबला उनका अभी भी शेष है और वो मुकाबला उनका कैफे बैक कंट्री के साथ होना है और इन परिस्थितियों में वो कल मुकाबला होगा। और क्या यहाँ से अब जाकर के डडू रेंजर्स की टीम कुछ विस्फोटक अंदाज के साथ आने वाले इस सत्र में बल्लेबाजी करेगी, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 16 ओवर पूरे, गौहर मल्ला ने पहला ओवर किया, कोई प्रभावशाली गेंदबाजी नहीं कर पाए और अब बासित अकबर होंगे सामने। सरशील नॉन स्ट्राइक शॉट पे दूसरा ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार बड़ा स्ट्रोक कदमों का इस्तेमाल जरूर किया था, खेलने का प्रयास वहां पर वो असफल रहा और गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। Well, it's a dot ball 16 without loss in over number 2. The two men in the middle for Diddu Rangers, Basit Akbar and Sarshil Abbas. Sarshil 16 of 6 balls. And it's 16 without loss in over number 2. Here is Kaleem Khan again to Basit, and Basit shaping for that drive on the up. And ball moving a little bit outwards. And that's a dot delivery. Scored a man static 16 without loss. 2 dots from Kaleem Khan here against Basit Akbar. But Basit is also stylish player and he was trying to drive that one. You just need to beat the man inside 30 yard. You're gonna hit the boundary because mandatory restrictions are on. Next one, oh, good delivery, nice delivery. This one coming in, the other one leaving the right hand, and next one coming back in. It jags back in, but just past an edge. 16 without loss in over number 2. लगातार एक ही प्रकार का स्ट्रोक खेलने का प्रयास वहां बासित अकबर का आ रहा, लगातार उनको बीट किया गया वहां गेंदबाज द्वारा। कलीम खान इस समय दूसरा ओवर प्रारंभ कर चुके हैं गौहर मल्ला के साथ। बासित अकबर को अभी खाता खोलना है, उन्होंने अभी तक 3 गेंदों का सामना किया, खाता नहीं खोल पाए। 16 रन 1.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद अगली गेंद कलीम की और इस बार सफलता मिल गई। हालांकि मिडॉन के ऊपर से गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा की ओर, अब जाकर के सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए गेंद 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका और इस चौके के साथ रन संख्या बढ़ती हुई डडू रेंजर्स की 20 पे पहुंची दूसरे ओवर में। कश्मीर कप सीजन 2024 19वां मुकाबला इस प्रतियोगिता का और आज के दिन का अंतिम मुकाबला। पहली पारी डडू रेंजर्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है और ऐसे में इस लाइव प्रसारण को पराजित किया है। अगर स्पॉन्सर की बात करें तो एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोकारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब, HND, बहुत बहुत धन्यवाद। फेशन फीस्ता पे मुख्य योगदान देते हुए फिलहाल कलीम खान अगली गेंद देकर के ये गेंद और इस बार फिर उसी क्षेत्र में, लेकिन इस बार गैप में तलाशा है, लेकिन पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को सफाई के साथ फील्ड कर लिया। 1 रन बासित के खाते में, वे 5 पे पहुंचे 5 गेंदों से, कुल रन संख्या 21 पे पहुंचाई 1.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद। Look at the scorecard, it's 21 after just 1.5 balls. It was Gawhar Malla who conceded 16 and Kaleem Khan this over so far has gone for 5 and he has bowled really well. Just 5 of his over so far with a lone slip in place. In the air, there is a man at mid-off, can't get to the ball and he gets away with that one. It was a leading edge, it lowered off, but the mid-off Gawhar Malla there, he's talking about sunshine. I lost the sight of the ball, I couldn't sight it. It should have been taken. It was easy one, but in the end it gone down, so 2 more runs added with that brace. Diddu sent the second over on high, 23 without loss. 23 रन दूसरे ओवर की समाप्ति हो चुकी है और 2 ओवर में 23, पहले ओवर में 16 रन बने, इस ओवर में 7 रन आए। अच्छा ओवर गठा कलीम खान का और गौहर मल्ला दूसरे ओवर में अपने कोटे की गेंदबाजी करेंगे। ये तीसरा ओवर होगा जेके पुलिस वॉरियर्स की ओर से और पुलिस वॉरियर्स की टीम इस प्रतियोगिता में अब तक पिछड़ती हुई क्योंकि यहाँ से मुकाबला जीतना आवश्यक है उनके लिए और ऐसे में बासित अकबर और सरशील की जोड़ी बीच मैदान में, सामने सरशील होंगे। ये गेंद सरशील के लिए और इस बार सरशील ने गेंद के आने का इंतजार किया, खाली इलाका चुना, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की ओर गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर और जब तक खिलाड़ी पहुंचते गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोकारा चौका, 27 रन संख्या 2.1 ओवर की गेंदबाजी के बाद। 27 without loss. Pressure begins with a big shot straight away. That's for 27 without loss.
and these two batters are going off to the bowlers. On the other side, JK Police Warriors are bleeding at the moment. Once more a four coming. Here is Gawar again. Oh, this one, it's huge, it's high, and it's handsome out of here. Six more, and that's six brought to you by Just Bukhara. Look at that one, he middled it, and it's out of here. High and handsome. 33 without loss in over number 3. 2.2 ओवर के गेंदबाजी में 33 रन बन चुके हैं और बासित अकबर के बल्ले से ये जस्ट बोकारा छक्का 7 गेंदों से 15 बनाए और 7 गेंदों से 18 बनाए। सरशील ने नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे है। 2.2 33। अगली गेंद गौहर की और इस बार फिर स्ट्रोक लामिडोव की ओर गेंद चली गई और धन्यवाद करना चाहेंगे हालांकि समूह शफात साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मेरे स्थान के हैं और लाइन ऑफ डिफेंस में वो अपना दायित्व निभा रहे हैं और बड़ा गौरवान्वित वो यहाँ पर मौजूद और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार की गेंद और इस भारत को ऑन साइड में लेग साइड में प्लेस करने का प्रयास किया जरूर था, हालांकि सफलता मिली लेकिन रन नहीं मिला और गेंद सीधे वहाँ वापस बॉलर की ओर। रन संख्या में इजाफा नहीं। 2.4 34 बगैर नुकसान के। 34 without loss. We're in over number 3 as we watch once again Gawar Malla, who continues to bowl from that far end, and he opened the attack with that expensive gone for 16. But look at these two lads, and Didu Rangers are 34 in no time. We're in for another run fest. Here is Gawar Malla again. Oh, look at that one, stylish on driven and beats the man at a long on. Oh, he goes back to stop the ball in the second attempt. A fumble, they allowed that second run. It's 36 without loss. 36 रन संख्या पहुंच चुके हैं। मात्र 2.5 और तेज तरार शुरुआत और ऐसे में एक विकेट की तलाश हो गई यहाँ जेएंडके पुलिस वॉरियर्स की टीम को। अगली गेंद गौहर की, इस बार गति परिवर्तन बाप लिया, खूबसूरत लाजवाब कलाइयों के दम पे एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। 4 रनों के लिए जस्ट बोकारा चौका। ओवर की समाप्ति चौके से 3 पूरे 40 बगैर नुकसान के डेडो रेंजर्स। Well then, 3 done, 40 without loss. Look at the scorecard. With too many batters to come, you can understand that what Didus are gonna do in this match. Are they going to create history? We're just done with the third one. It's 40 on the board. What's the high score here? While batting first. और 200 से अधिकतम का लक्ष्य यहाँ 240 अथवा 242 रन बनाए थे इसका मुकाबले में। हालांकि मुझे वो पूरी तरह से जहन में नहीं है लेकिन सूचना जरूर आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत कलीम खान अगली गेंद लेकर गए और इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद, बहुत बढ़िया गेंद टिप्पा खाने के बाद अतिरिक्त चाल के साथ कांटा भी बदला गेंद ने ऑफ स्टंप की ओर सर की सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में बगैर किसी रन के। चौथा ओवर प्रारंभ हो चुका है। कलीम खान दूसरा ओवर, अब तक 7 रन उन्हें खर्चे हैं। अच्छा ओवर उनका पिछला काटा था लेकिन इस ओवर में देखना होगा क्या वो यहाँ बल्लेबाज सरशील और बासित को शांत रख पाएंगे, क्या यहाँ से वो इस साझेदारी को तोड़ पाएंगे, क्या यहाँ रनगति पे अंकुश लगा पाएंगे, ये देखना होगा। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न रहेगा। अगली गेंद कलीम की और इस बार फिर खूबसूरत गेंद, पूरी तरह से वहां अस्त व्यवस्थ कर दिया, स्टंप्स को कवर किया, उसके बाद रक्षात्मक रूप से खेलने का प्रयास पूरी तरह से वहां बीट किया बासित अकबर को गेंदबाज कलीम खान ने। रन नहीं आया। 40, 3.2 ओवर की गेंदबाजी 16 बासित अकबर और सरशील 24। 40 on the board, 3.2 done. Here is the next one. We'll have to wait and watch. Where is this one gonna go? Here is Kaleem again. This time looks to flick it up the pad, goes down to a short fine, and the two batters are up for a quick single. But look at the return, look at the shy. A wayward shy comes in, but well, one more run added, and that single takes it to 41 without loss. 41, 3.3 ओवर की गेंदबाजी। हालांकि दबाव में है इस समय टीम, क्योंकि अगर इस थ्रो की बात करें तो दिशाहीन थ्रो था। हालांकि विकेट कीपर एक स्थान पे थे और गेंद दूसरे स्थान पर चली गई। रन यहाँ जरूर मिला। फिलहाल सामने होंगे सरशील कलीम की इस अगली गेंद का सामना करने के लिए। गेंद और इस बार अच्छी गेंद थी, खूबसूरत गेंद थी दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए, ऑफ स्टंप से बाहर और ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में आ पहुंची। अच्छा ओवर। हालांकि इस ओवर की अगर हम बात करें 4 गेंदें फेंक चुके हैं
और भाई के रूप में वो रन आया है, 7 रन उन्होंने खर्चे हैं। 41 रन संख्या 3.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद दूसरे छोर से दूसरे गेंदबाजों को समर्थन यहाँ पर देना होगा गेंदबाजी से अपनी टीम को, जहाँ तक जेएनके पुलिस वॉरियर्स की टीम का सवाल है। सरशील के लिए अगली गेंद कलीम खान के, और इस बार पैर बड़ा स्टॉक, पैर गेंद की लाइन में नहीं आए, ऑफ स्टंप पर ये गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में। आक्रमण देखिए, क्षेत्र रक्षण देखिए, ऑफ साइड की अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी ऑफ साइड में है और 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, 6 और 3 की फील्ड के साथ इस समय गेंदबाजी हो रही है। 41 रन संख्या, अंतिम गेंद का आना बाकी। पावर प्ले ऑन चौथा ओवर, कलीम खान गेंदबाजी कर रहे हैं। गौहर मल्ला ने 2 ओवर की गेंदबाजी की और ऐसे में सरशील सामने है जो कि 24 पे 12 गेंदों से अंतिम गेंद, और इस बार ठीक गेंद के पीछे आया, खेला जरूर लेकिन बाहरी किनारा लेती हुई ऑफ साइड में गेंद चली गई, फील्ड हुई, रन नहीं मिला। अच्छा ओवर कटा यहाँ कलीम का, ओवर समाप्त, 4 पूरे और 4 के बाद 41, मात्र 1 रन इस ओवर से। बढ़िया ओवर। Tight over this, brilliant over this from Kaleem Khan. Look at his figures, 2 overs, none for 7. But 34 of Gawhar Malla Kota. He bowled 2 overs, gone for 34. He's conceding at the rate of 17 and over. Oh, it's simply balle balle. And he's taken on. I think captain should change a bowling attack here. He should bring in someone else in place of Gawhar Malla here. And yeah, there comes the first change in the bowling department. It's going to be someone else in place of Gawhar Malla to bowl. Looks like a medium pacer. The way he's warming up a bit at the moment. It's going to be who is in place of Gawhar Malla. We'll have to wait and watch. We shall confirm, but it's 41. It's 10 and over going on. But credit goes to Kaleem Khan, this young lad who's put on jersey number 3, has bowled brilliantly. He bowled in the right directions, in right area. GR Malik into the attack. First ball, handsome looking shot, little uppish, and fielder gives the chase. Will he get to the ball? And this is going to tease him on way to the extra cover fence for 4. That was brought to you by Just Bukhara. Handsome looking shot again, and keeps it in the air. Doesn't bother to keep it down, knowing that there is, you just got to beat that man at short extra cover. You're gonna hit the boundary. So does the batter on that occasion. It's 45 without loss. 45 4.1 ओवर की गेंदबाजी, और अब जाकर के GR मलिक को लेकर के आए हैं और देखना होगा मलिक किस प्रकार की गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने बासित अकबर रहेंगे अथवा सरशील अब्बास हैं ये गेंद, और सरशील ने इस बार फिर उसी क्षेत्र में, लेकिन इस बार मिड ऑफ की और पीछे खिलाड़ी शानदार वहां पर क्षेत्र रक्षण। निश्चित तौर पे गेंद की गति को न सिर्फ कम किया बल्कि बल्लेबाजों को भी रोका। मात्र 1 रन वहां मिला। जी हाँ, 1 रन और 46 4.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद मलिक के समय गेंदबाजी कर रहे हैं और सामने अब रहेंगे सरशील जो कि 24 पे नाबाद है। 13 गेंदों का उन्होंने सामना किया। बासित ने 21 बनाए, 13 गेंदों का उन्होंने भी सामना किया और इन परिस्थितियों में 5वें ओवर की गेंदबाजी 4.2 46 बगैर नुकसान के 1 विकेट की तलाश। शुरुआत में 1 विकेट के लिए जूझ रहे हैं इस समय जेएनके पुलिस वॉरियर्स के गेंदबाज। हालांकि अभी तक सफलता किसी भी गेंदबाज को नहीं मिली। तीसरे गेंदबाज का चयन किया गया है। शुरुआत गौहर मल्ला ने 2 ओवर की गेंदबाजी की और उसके बाद कलीम खान ने भी 2 ओवर, लेकिन कलीम खान ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने मात्र 7 रन खर्चे अपने 2 ओवर में, उन्हें भी सफलता नहीं मिली। और GR मलिक को लेकर के आए हैं यहाँ जेएनके पुलिस वॉरियर्स के टीम के कप्तान। ये देखते हुए किस साझेदारी को तोड़ना होगा, जितना जल्दी हो सके उतना साझेदारी को तोड़ें तो दबाव बल्लेबाजों पे होगा और उस बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का जो प्रयास इसमें डडू रेंजर्स कश्मीर के बल्लेबाजों का है उस तक रोका जा सके। अगली गेंद मलिक की लेकर के ये गेंद इस बार सरशील ने खेला। एक बार फिर गेंद मिड ऑफ की ओर चली गई। वहां खिलाड़ी बाउंड्री लाइन के बिल्कुल 1-2 कदम अंदर थे, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया, लेकिन उससे पूर्व समय था दोनों बल्लेबाजों के पास 1 रन बटोरने का। अच्छी रणनीति 47, लेकिन यहाँ 1 विकेट की तलाश है। विकेट लेना होगा, जितना जल्दी हो सके विकेट प्राप्त करने का प्रयास इस समय गेंदबाजों का। अगली गेंद GR मलिक की और इस बार बासित अकबर के लिए दिशाहीन गेंद, लेग स्टंप से बाहर, विकेट कीपर चूके, गेंद सीमा रेखा से बाहर, वाइड का इशारा। 5 अतिरिक्त और खाते में 52 रन संख्या 4.3 के बाद। 52 on the board, 50 comes up. GR Malik string it down the leg side, away from wicket keeper. He was unable to cut it off. He was unable to stop that one. Can't keep this one in his gloves. The glove man behind the sticks is GR. We'll have to wait and watch. We shall confirm who's keeping wickets today. But next one does well. Bunt to sit in front of point. Scamper through. Good running between the wickets. But look at Dedu Rangers. They are playing a wonderful game here. They are middling each and every ball here. But look at the bowlers. Only one man. That was Kaleem Khan, who bowled some tight lines and lengths. Others are bleeding and
leaking runs here and there. Even Jr. Malik string it down the leg side. No discipline at all. 53.4 दो गेंदें शेष सरशील सामने और जीआर मलिक गेंदबाज अगली गेंद इस बार ऑफ स्टंप से बाहर फिर चौक वहां पर और गेंद सीमा रेखा से बाहर वाइड का इशारा 5 अतिरिक्त और One more Nazir, I was just talking about that. No discipline. One way down the leg side. Second one wide of the off, and wicket keeper stretch but can't stop the ball. And look at wicket keeper. He's having a bird with his slip hitter Kaleem Khan there, and all smileless as Jr. Malik is bowling it wide of the off, way down the leg side. कुल रन संख्या 58.4 ओवर की गेंदबाजी के बाद एक बड़े लक्ष्य की ओर अग्रसर डेडू रेंजर्स की टीम। सरशील के लिए जीआर मलिक अगले गेंद और इस बार सीधे बल्ले से लाजवाब खूबसूरत बेहतरीन कलाइयों का इस्तेमाल और गेंद ठीक सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए एक और जस्ट बोखारा चौका। क्या बेहतरीन ये स्ट्रोक था, दर्शनीय स्ट्रोक था, हस्ताक्षर किए गेंद पर अपने बल्ले से यहाँ बल्लेबाज ने और रन संख्या पहुंचा दी 62.4 के बाद। लगातार आत्मविश्वास और निडर होकर के इस समय बल्लेबाजी होती हुई अगली गेंद जीआर की और इस बार ऑन साइड में ये बढ़िया है, ये कमाल है और गेंद एक टिप्पे के बाद सीमा रेखा से बाहर निकल जाएगी। एक और जस्ट बोखारा चौका, आखिरी गेंद पर ये चौका, ओवर समाप्त 5 के बाद 66 बगैर नुकसान के। Oh, look at that one. Pulled and pulled to perfection down towards Kalkana. Kalas from Sarshil Abbas moves to 33 of just 16 balls. It's 66 partnership between Sarshil and Basit Akbar. Young lad is thinner bodied but technically sound, stylish cricketers, and look at the two openers, Nazir. Both know how to go after the bowlers and both possess a rare skill set and something special on upper. We have seen these two lads batting since ball one, timing the ball, middling the ball, placing the ball and going after the bowlers. The one more important thing which is pertinent to mention, the stroke play and the style they possess all are copybook stylish proper cricketing strokes. बहुत ही बेहतरीन शानदार, हालांकि वो चाहे वो शॉट सिलेक्शन हो, चाहे वो प्लेसमेंट हो, चाहे वो टाइमिंग हो, लाजवाब रही है बासित अकबर और उनके साथ सरशील अब्बास की। नए ओवर की शुरुआत कलीम लगातार गेंदबाजी करेंगे। ये छठा ओवर, पहली गेंद इस बार लेग स्टंप पर फ्लिक किया और फाइन लेग की ओर खेले हैं। उस ओर खिलाड़ी तैनात थे, वो नहीं पहुंच पाई, गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई। एक और चौका, यहाँ लगातार रन गति में उछाल देखने को मिल रहा है डेडू रेंजर्स के इन दो बल्लेबाजों द्वारा। चौका और इस जस्ट बोखारा चौके के साथ बासित अकबर 26 पर पहुंच गए 15 गेंदों से और कुल रन संख्या समय डेडू रेंजर्स की 5.1 के बाद 70 पे पहुंच चुके। कल्पना आप कर सकते हैं। तेज तरार विस्फोटक शुरुआत, अगली गेंद लेकर के तैयार बासित अकबर के लिए। कलीम खान 11 खर्चे हैं, ये तीसरा ओवर उनका है। इस बार अच्छी गेंद ठीक गेंद के पीछे आए और बेहतर तरीके से इसको खेला। कवर क्षेत्र में गेंद फील्ड हुई, रन बनने की संभावना थी नहीं। दोनों बल्लेबाज अपने अपने स्थान पर सुरक्षित। यह विकेट जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, कम से कम एक विकेट तलाशना होगा, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं है और उसका कारण यह कि बड़े बेहतर तरीके से, बड़े आत्मविश्वास के साथ, संयम दायरे के साथ यहाँ बल्लेबाजी हो रही है। अगली गेंद लेकर के तैयार उस चोट से कलीम की है गेंद और इस बार खेला जरूर, हवा में है गेंद और मिड ऑन का खिलाड़ी संतुलित हो रहा है। यहाँ कैच उन्होंने हालांकि छोड़ा जरूर है और न सिर्फ कैच छोड़ा बल्कि एक और जीवनदान यहाँ बल्लेबाजों को दिया है और 2 रन और खाते में 72 रन संख्या छठे ओवर में। Well, he dropped, should have been taken. Well, then it is 72 for the loss of no wicket. This over number 6, last room mandatory power play is on and underway as we watch once again Kaleem Khan, who's in his third over, none for 13. Kaleem bit unlucky, fielders unable to spot him. Look at the running between the wickets. There was no run and they pinch a single. Fielders are in a kind of a slumber, a deep slumber at the moment. They're unable to back the ballers, putting down dollies. Even wicketkeeper unable to stop the ball. देखिए वहाँ बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल सकता है, निराश चेहरे हैं, कंधे झुके हुए हैं। हालांकि अभी अभी ये पारी प्रारंभ हुई है, मात्र छठे ओवर की गेंदबाजी हो रही है, लेकिन किस आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी हो रही है। एक और खूबसूरत स्ट्रोक, खाली इलाका चुना है, गेंद जा रही है सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए जस्ट बोखारा चौका। रन संख्या लगातार उछलती कूदती छलांगे मारते हुए। Flicks it and flicks it to perfection. That's for just Bukhara boundary. 77 without loss in over number 6. That was a quality shot. I was talking about style, proper cricketing strokes. He's got all the shots from cricketing book. And look at that one down towards Scalag area, earning a boundary. Score is 77 in over number 6. Here is Kaleem again. Oh, look at that one, but it goes straight to man at backward. A point would have been another elegant shot, but unable to beat the man. Middled nicely.
but finest man in place to end the over number 6. It is 77 for none. पहला पावर प्ले जो 6 ओवर का अनिवार्य रहता है वो समाप्त हो चुका है और पावर प्ले में पूरी तरह से बल्लेबाजी हावी 77 बने बगैर नुकसान के 37 सरशील बासित अकबर 29 18 गेंदों से और दोनों बल्लेबाजों ने 18 गेंदों का सामना किया। अंतर ये है 18 गेंदों से 29 बनाए बासित अकबर ने और 18 गेंदों से 37 बनाए हैं वहां सरशील अब्बास ने। ये प्रारंभिक जोड़ी समय बीच मैदान में एक विकेट के लिए जूझ रहे हैं यहाँ गेंदबाज जेएंडके पुलिस वॉरियर्स के, लेकिन अभी तक वो सफलता प्राप्त नहीं हुई। किसी भी गेंदबाज को अभी तक सफलता जो है अर्जित नहीं हुई है। अब एक और गेंदबाज का चयन किया जा रहा है। कलीम खान ने 3 ओवर की गेंदबाजी 18 रन दिए, गौहर मल्ला ने 2 ओवर की गेंदबाजी की और उसके अलावा जीआर मलिक ने भी 1 ओवर की गेंदबाजी की। तो ये अब तक का लेखा जोखा है 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल और अब जाकर के चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। कलीम खान, गौहर मल्ला, जीआर मलिक। अब देखना होगा क्या यहाँ एक और गेंदबाज का चयन अथवा जीआर मलिक से ही गेंदबाजी करवाएंगे। ये 7वां ओवर पारी का होगा। 6 के बाद 77 डेडो रेंजर्स टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हैं। दिन का पहला मुकाबला सुल्तान वॉरियर्स और डेडो रेंजर्स के बीच। डेडो रेंजर ने वो मुकाबला जीता। दूसरे मुकाबले में वो जेएंडके पुलिस के सामने ये गेंद और इस बार उसको बैकफुट पर आकर के हल्के हाथों के साथ फ्लीज किया। वहाँ खिलाड़ी तैनात हैं, उन्होंने पॉइंट क्षेत्र से गेंद को फील्ड तो कर लिया लेकिन रन बनने की संभावना थी नहीं। 6.1 के बाद 77 29 पे बासित अकबर अगली गेंद का सामना करने के लिए शहनवाज हुसैन को लेकर के आए हैं और शहनवाज एक अच्छे स्पिन गेंदबाज हैं, लेकिन क्या यहाँ वो जाल बुन पाएंगे, क्या ये इस साझेदारी को तोड़ पाएंगे, क्या यहाँ से विकेट प्राप्त कर पाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। इस बार फिर लेग स्टंप पर ये दिशाहीन गेंद, हालांकि इसको स्वीप करना चाहते थे, सफलता नहीं मिली। गेंद पैड से टकराने के बाद ऑफ साइड में चले गए, वहां फील्ड हुए, रन बनने की संभावना समाप्त। रन संख्या 77। 6.1 ओवर की गेंदबाजी। अगली गेंद शहनवाज की, इस बार जगह मिल गई, स्ट्रोक खेला, वहां पर अवसर बना था, वो हाथ से चिटका और गेंद निकल गई सीमा रेखा से बाहर। एक और जस्ट बोकारा चौका। 81 रन संख्या 7वें ओवर में। That's for another great shot and beats the man, and it is 81 for the loss of no wicket. This over number 7 we are in. Another quality shot, but misfield again there. They're unable to stop the ball and they're unable to back the bowlers. Look at that one, goes deep in crease again. There is a screen from bowler, catch it, take it, and it goes in the vacant space. Then a fielder from boundary line comes in to stop the ball, but not before the two batters crossed over for another single. It's 82 for none. But look at the ranges. It looks like that 200 plus is loading today in this all important match for Dedu Rangers. They need to win each and every game from here if they want to. Oh, look at that when he parried it to the fence. It should have been just a single, but he parried it to the boundary. That was brought to you by Just Bukhara. With that boundary, score propelled to 86 without loss in over number 7. And look at that one. Talking of sloppy field, talking of a lackadaisical approach, imprudence. Look at the man. It was within the play field and he parried it, and it gone almost 10 or more than 10 yards to the fence. In the air again, just short of him. And on the bounce collects the ball. And one more run added. 87 without loss in over number 7. 87 बगैर नुकसान के 6.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है यहाँ और समझते यहाँ ओवर पूरा हुआ है और ऐसे में एक और ओवर की समाप्ति और इन परिस्थितियों में 87 6.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद और अब जाकर के यहां से एक विकेट की तलाश है और एक विकेट जल्द से जल्द प्राप्त करना होगा जेएंडके पुलिस वॉरियर्स की टीम को। टीआरसी डलगेट से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएचएम फ्यूजन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट वकारा, हमदान हुरिकेन, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और उसके अलावा एचएनडी कंप्लीट किड्स वेयर शोरूम नडीपुरा श्रीनगर। अपना समर्थन सहयोग देने के लिए धन्यवाद स्पॉन्सर्स का, अपने श्रोताओं का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। हालांकि एक अच्छा मुकाबला लेकिन एकतरफा मुकाबला अब तक इस सत्र में बना दिया है और ऐसे में इन परिस्थिति में अगर हम बात करें 7 ओवर पूरे 92 रन बने हैं और 42 सरशील अब्बास 20 गेंदों से, बासित अकबर ने 39 बनाए 22 गेंदों से। अभी भी 13 ओवर का आना बाकी है और अपने पहले ओवर में शहनवाज ने 15 रन खर्चे हैं, काफी खर्चीले साबित हुए। Well, it is 92 after 7 overs. Runs are coming, runs are following, and JK Police Warriors are unable to put brakes on. They're leaking runs at the moment, and they are in desperate need of a breakthrough here. They need one wicket at least to pull things back a little bit. And it's 92 after 7. Here is the pressure. First ball, spin into the attack. This could be tight, but umpire believes there was bat involved. There was an inside edge.
That's the only reason. Otherwise, he looked to Plum well in front, but he believes there was an inside edge onto the pad. Here is Muzammil again. Oh, this time he improvised, and it goes down to the final leg for 4 runs. 4 of them scoops it away, and that is just to Bukhara 4, score propelled to 96. But look at the great presence of mind and awareness of the game. He knew and he knows that there isn't anyone behind square, behind 45 on onside. It's a vacant space. It's a vast and big field there. Easy to target. Next one, it's turning and further turning outwards. White gold, 1 more run added, 97 without loss. 97 रन संख्या 8वें ओवर में बगैर नुकसान के सरशील 46 पे और उनके साथ बासित अकबर 39 पे। ये प्रारंभिक जोड़ी और बेहतरीन अब तक पारी उन्होंने खेली है ये गेंद, और इस बार फिर लॉन्ग ऑन की ओर खेला है। हालांकि उस ओर खिलाड़ी आ रहे हैं, जब तक भी लॉन्ग ऑन से आकर के गेंद को फेल करते थ्रो करते पलट कर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 2 रन और खाते में और 2 रनों के साथ 98.7.3 के बाद एक और बेहतरीन शतक ये साझेदारी के करीब पहुंच चुकी है। इस समय ये प्रारंभिक जोड़ी, जहां तक पहले विकेट की बात करें डडू रेंजर्स के लिए 7.3। अगली गेंद लेकर के तैयार, गेंदबाजी का दायित्व इस समय मुजम्मिल खान के पास। मुजम्मिल की ये गेंद और इस बार फिर बड़ा स्टॉक लॉन्ग ऑन की और पीछे खिलाड़ी, और यहाँ कैच लपक लिया और क्या ये विकेट? जी हाँ, और पहला विकेट मिला 98 पे जाकर के पहला विकेट 7.4 के बाद मुजम्मिल ने दिलाई सफलता। We're just talking about they need a wicket here, and in the end getting that wicket in form of Sarshil, who was taking game away from Police, gone on 48 of 24 balls. He was batting with a strike rate of 200 Nazir. बहुत ही बेहतरीन तेज तरार पारी उनने के लिए। हालांकि 48 रन बना करके वो अर्धशतक से चूके 2 रन दूर रह गए, लेकिन एक बेहतरीन और अच्छी शुरुआत देने में सफलता पूर्वक उन्होंने अपनी पारी को चलाया। 98 पे पहुंचाया पहला विकेट। आमिर सोफी नए बल्लेबाज सरशील अब्बास के स्थान पर। Well, new man walks in. Amir Sofi failed against Sultans early this morning here, or early this afternoon to be precise. That was match number 1 of the day. It was 18th one, and this 19th game of Kashmir Cup Season 2, which is underway between JK Police Warriors and Dedu Rangers. And that victory over Sultan Warriors not only studied the ship, but cemented their position in the tournament. Now they can hope against hope. They are very much alive in the competition. Stiff competition awaits all the teams. The teams which will go through for the next round will play the eliminator, and the qualifier will have a tough competition on Cardiff. But here JK Police Warriors, they were on the receiving end. Now some respite, getting rid of that Dangerman Sarshil. Basit is still there. He's unbeaten on 39. Plays it with a soft hand and is up for a quick single. 99 for 1. After 8 overs, successful over comes to an end. It was Muzammil Khan who bowled that tight over. Sorry, 1 ball remaining. It's 99 on the board. 1 share of Team 100. Dedu. Defensive shot. Blocks it back to the bowler. A dot to end the over from Muzammil Khan. 1 over 1 for 7. It's 99 for 1 after 8. 8 पूरे 99 एक विकेट के नुकसान पर डडू रेंजर्स कश्मीर की टीम बासित अकबर और सरशील ने पारी प्रारंभ की। सरशील ने 48 बनाए, 98 पर पहला विकेट, और अब जाकर के आमिर सुफी नए बल्लेबाज जो बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। हालांकि 1 रन उन्होंने जरूर बनाया है, 1 गेंद का सामना किया और 39 पे नाबाद है बासित अकबर। दूसरे चोट पे चले गए हैं, नॉन स्ट्राइक की चोट पे। पारी का अब जाकर के 9वां ओवर। अच्छी खासी धूप खिली हुई कश्मीर कप सीजन 2 2024 के अंतर्गत ये प्रतियोगिता, और ऐसे में मैच नंबर 19वां मुकाबला इस समय चल रहा है। पहली पारी J&K पुलिस का मुकाबला डडू रेंजर्स के साथ। अगली गेंद नए ओवर की और इस बार बैक फुट पर गए, जगह बनाई, उसको खेला पॉइंट की और पीछे खिलाड़ी हैं। जब तक डीप पॉइंट से आकर के गेंद को फील्ड किया जाता, 1 रन और खाते में और 1 रन संभवतः दूसरे रन के लिए पलटे, और 2 रनों के साथ ही रन संख्या में इजाफा होता हुआ रन संख्या 100 तक पहुंच चुकी है। 1 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर पारी का चल रहा है। ऐसे में J&K पुलिस वॉरियर्स को मात्र 1 सफलता हाथ लगी है। मुजम्मिल ने वो सफलता प्राप्त की थी, सरशील को उन्होंने वहां लॉन्ग ऑन क्षेत्र पे कैच करवाया था। और ऐसे में अगली गेंद इस बार लेग साइड में उसको प्लेस किया स्क्वायर लेग की और पीछे खिलाड़ी आए, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और खाते में चहलकदमी करते हुए बड़े आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी हो रही है। 101 1 विकेट के नुकसान पर 9वां ओवर पारी का चल रहा है। डडू रेंजर्स की टीम एक बड़े विशाल लक्ष्य की ओर अग्रसर होती हुई। गेंदबाजी
शहनवाज और इस बार हवा में लहराता हुआ स्ट्रोक उस और खिलाड़ी, क्या कैच होगा? जी नहीं। और ऐसे में 6 रनों का निर्णय वहां पर अंपायर माजिदुरा का। जस्ट बोकारा चक्का 108 9वें ओवर में 1 विकेट के नुकसान पे। Shahnawaz Malla can't believe this. It goes on to hit the Chinar, and that's 6. That just Bukhara 6 brings up the 100 for Didu Rangers. Next one again, it was again asking to be hit, but ball drops down little bit, and off the lower end goes down towards wide of long on. A single is all he's gonna get. Every run will put pressure on bowlers. 109 flighted delivery, but he comes down the track, takes it on the full, and plays it straight down towards long on area. Was it a ploy to lure him into the big shot, but he decided to play it all along the ground. जी बिल्कुल, यहाँ ललचाने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, बड़े स्ट्रोक के लिए जाइए। और वहाँ पर एक खिलाड़ी तैनात जरूर था। इस गेंद को वापस खेला बॉलर की दिशा में, रन नहीं आया, ओवर समाप्त हुआ 9 पूरे और 110 रन ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पे। 11 ओवर का खेल अभी भी शेष है। बासित अकबर इस समय 46 पे नाबाद हैं 25 गेंदों से, और आमिर सूफी ने 5 बनाए 4 गेंदों से। अच्छी साझेदारी एक बार फिर देखने को मिल रही है धीरे धीरे से, और इस साझेदारी को और ज्यादा बेहतर करना होगा इन परिस्थितियों में। और ऐसे में देखना होगा कहां तक पहुंच पाएगी डेडू रेंजर्स की टीम। हालांकि 11 ओवर का खेल, और आपके पास बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, बहुत सारे विकल्प आपके पास बल्लेबाजी में, जहां आदिल वानी काना बाकी, जहां आसिफ मंजूर और उनके अलावा गुलजार गोली हैं, आमिर अली हैं, फैसल डार हैं, तो आपके पास अच्छी खासी बल्लेबाजी है। एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का जरूर प्रयास करेंगे। 110 पे 9 पूरे 11 ओवर का खेल बचा। Over number 9 is done. It's a 20 over game, 11 overs remaining, 66 balls are gonna come. Basit 46, just 4 shy off his individual half century, and what an innings for Basit Akbar, and captain backing this lad. And I think these youngsters, captains need to back them, team management should back them, because this is our future in cricket when it comes to the Valley. Well, here is the fresh ball, and on strike will be Basit, who's on to 46, just a shot away from his 50 here. Here is Muzammil, and Amir Sofi plays it deposit to be precise, scamper through and give a strike back to Basit Akbar, man on 46. 111 1 विकेट के नुकसान पर 10वां ओवर, और ऐसे में मुजम्मिल खान गेंदबाजी कर रहे हैं। 1 ओवर 7 रन 1 विकेट, और अगली गेंद लेकर के तैयार। बासित के लिए इस बार स्कूप किया, हवा में लहराती हुई गेंद फाइन लेग की ओर, पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं, क्या रोक पाएंगे? जी हां, जब तक वो गेंद तक पहुंचते पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज, और 2 रनों के साथ रन संख्या 48 व्यक्तिगत बासित अकबर की, और कुल रन संख्या 113 1 विकेट के नुकसान पे। 9.2 ओवर की गेंदबाजी, 10वां ओवर पारी का चल रहा है। मुजम्मिल है गेंदबाज और बासित अकबर होंगे सामने। 2 रन दूर अपने अर्धशतक से, 27 से 48 पे नाबाद ये गेंद, और इस बार खेला वापस बॉलर की दिशा में, तेज तरार स्ट्रोक, यहाँ चौका जी नहीं, शानदार क्षेत्र रक्षण वहां पे खिलाड़ी द्वारा, लेकिन 1 रन जरूर मिला। बासित पहुंच गए 49 पे 28 गेंदों से, 6 पे सामना करने के लिए तैयार। आमिर सोफी 114 पे 9.3 के बाद 114. Here is Muzammil, and again he dabs it, and Amir Sofi, he believes in singles, he knows how to convert ones into twos. He's gonna play that single game, he's gonna nudge the ball, place or clip the ball. This is his strength, he's betting to his strength here. It's 115 for 1. Oh, I don't know how did that miss the stumps. Even bowler is surprised. Hand is on his head. Oh, chance of a run out, but look at the fielder. Even in his 3rd attempt, he was unable to pick it up. Not a clean stop. Try thrice, once, twice, thrice, and in the 3rd attempt he releases the ball, but to no avail. It's 117. Oh, driven handsomely, good looking shot, eyes on the ball, hand-eye coordination perfect, and head still, driven handsomely, drives the ball. 118 for 1 in over number 10. 118 1 विकेट के नुकसान पर, और 30 गेंदों से 50 अर्धशतक पूरा किया बासित अकबर ने। बेहतरीन पारी उन्होंने खेली, और अभी भी अभिजीत हैं 7 पे 6 गेंदों से। आमिर सोफी समर्थन दे रहे हैं, और कुल मिलाकर
30 गेंदों से ये 50 रन बनाए हैं बासित अकबर ने, जो कि सरशील के साथ पारी का प्रारंभ करने आए थे और उन्होंने एक बेहतरीन पारी खेली डडू रेंजर्स कश्मीर के लिए। 10 ओवर पूरे आधा सफर तय कर लिया है। 118 बने 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर। 10 ओवर का खेल, 9 विकेट सुरक्षित, 2 अभिजीत बल्लेबाज, 2 नाबाद बल्लेबाज इस समय बीच मैदान में आमिर सोफी और एक और जमे हुए बल्लेबाज बासित अकबर। क्या शानदार पारी उन्होंने खेली है और इस प्रतियोगिता में उन्होंने बहुत ही बेहतरीन लाजवाब प्रदर्शन किया है अब तक, अगर कश्मीर कप सीजन 2024 की बात करें। You're right, and it's 118 after 10 hours, halfway mark, halfway stage. 118 projected score, telling it's going to be 236 if they carry on with the same pace. If they persist with the same current rate of 11.80 and over, yes, it's going at the rate of 11.80. Muzammil 2 was 1 for 13. Muzammil Khan, I think he has done well. Nazir 2 overs, 1 for 13. Just shade over 6 and over. 11वें ओवर की शुरुआत 118 पे 1 और मुजम्मिल खान ने 2 ओवर में 13 रन करके एक सफलता और अभी तक मिली है। और अब देखना होगा पारी का 11वां ओवर, यहां से विकेट की तलाश हो गई। हालांकि मात्र 1 विकेट मिला है और वो विकेट सरशील अब्बास का मिला था मुजम्मिल को, और उसके अलावा किसी भी गेंदबाज को अभी तक सफलता नहीं मिली है, चाहे वो गौहर मल्ला हो, चाहे वो अन्य गेंदबाज जिनमें प्रमुख तौर पे अकील हो या फिर फेरोज हो, तो किसी भी गेंदबाज को अभी तक विकेट नहीं मिली है। और ऐसे में एक और परिवर्तन संभव थे, शहनवाज को सफलता नहीं मिली तो गेंदबाजों ने अभी तक प्रयास किया और ऐसे में लगातार यहां प्रदर्शन कर रहे हैं। डडू रेंजर्स की टीम की बात करें, 118 रन बने, 1 विकेट खोया, 10 पूरे हुए और अब जाकर के 11वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है। शहनवाज क्या नए गेंदबाज होंगे, वो पारी का प्रारंभ करेंगे। पहली गेंदबाज स्वीप किया और खूबसूरत स्ट्रोक, हालांकि 1 रन तो जरूर मिलेगा और 1 रन के साथ और इससे पूर्व 50 पर पूरा कर चुके हैं, 51 पे पहुंचे और अर्धशतक बेहतरीन पारी उन्होंने खेली। आमिर सोफी सामने 119 विकेट के नुकसान पर ये गेंद और इस बार ऑफ स्टंप पर जगह मिल गई, एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की और बेहतरीन स्ट्रोक है। पीछे खिलाड़ी आ रहे हैं, जब तक वे गेंद को फेल करते पलटकर दूसरे रन के लिए आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। 2 रन और खाते में जुड़े और आमिर सोफी 2 रनों के साथ 9 पर पहुंचे, 7 गेंदों से 121 विकेट के नुकसान पर 11वां ओवर। Well, Basit brings up his 50s on to 51 of 31 balls. Flighty delivery swept and swept well, but can't beat the man. Little fumble, only a single accrued. It's 122 for the loss of run. We are in over number 11 as we watch Shahnawaz Malla again. 2.3 none for 29 down the leg side, far too down the leg side, a big wide. He wided this one again. It's 122. Shahnawaz need to keep it simple, don't experiment, try to pitch it on middle and off or in that corridor of uncertainty. But he's bowling it down the leg side. Look at that one, goes deep in crease, came back quickly and plays it down towards wide up mid on. It's 1-2-3 for 1. 123 1 विकेट के नुकसान पे 10.4 ओवर की गेंदबाजी। 11वां ओवर शहनवाज गेंदबाजी कर रहे हैं, 2.5 ओवर 32 रन उन्होंने खर्चे हैं। अगली गेंद लेकर के और इस बार गेंद के पिच तक पहुंचे, हल्के हाथों के साथ उसको ऑन साइड पे प्लेस किया, 1 रन के लिए दौड़ पड़े। अच्छी रणनीति वहां आमिर सोफी और बासित अकबर की, 1-1 रन से भी पारी को चला रहे हैं। जहां खराब गेंद मिलती है उसको सही नसीहत दे रहे हैं, अच्छी गेंदों का सम्मान दे रहे हैं, बुद्धिमानी का परिचय इस समय दोनों बल्लेबाज और बेहतर साझेदारी पनपते हुए। 124 अंतिम गेंद, इस बार फ्लाइट देने का प्रयास पड़ लिया, हवा में है स्ट्रोक, उस और खिलाड़ी है लॉन्ग ऑफ की और उन्होंने कैच से यहां लपक लिया। बासित की पारी हुई समाप्त 124 11 के बाद, लेकिन दूसरा विकेट गंवा दिया है डडू रेंजर्स ने। Once he saw that fielder in that position, he decided to walk away and he knew that it's within the boundary line. Fielder settling and shaping, takes it in the end. Wasn't easy with that wobble downwards, but does well settling underneath the ball, takes it in the end. And that brings captain and skipper of Dedu Rangers to bat. He walks in at number 4, won the game for his team early this afternoon, and he batted like a champion against Sultan Warriors, and he made sure that we're gonna walk away unhurt. In the end, we saw that how it happened and what happened in that game, in that match. We saw how this lad batted and stood up to the occasion and batted like a champion as a true skipper. Not only studied the ship for his side, but
played with authority and given his side all important and invaluable 2 points. Now it's another game of the day underway. It's their second match of the day, and 124 up to 11 overs with 2 down, 9 overs remaining. 54 balls are gonna come, and as far as their depth in the batting is concerned, they got huge depth. They got batting till number 11. Am I right? बिल्कुल बल्लेबाजी उनके पास अच्छी खासी है। 125 2 विकेट के नुकसान पर 11 पूरे हो चुके हैं और रन ओवर का खेल। ऐसे में आमिर सूफी स्ट्राइक लेने की तैयारी कर रहे हैं और आसिफ मंजूर जो कि गजब के फॉर्म में नॉन स्ट्राइकिंग शॉट पे पहुंच चुका है। नए ओवर की शुरुआत पहली गेंद आमिर सूफी द्वारा और खूबसूरत तिरछे बल्ले के साथ ये स्ट्रोक जरूर खेला, 1 रन तो जरूर मिलेगा और आसिफ मंजूर अब स्ट्राइक लेने की तैयारी करेंगे। वो स्ट्राइक लेंगे 126 पे 2, 11.1 ओवर की गेंदबाजी। 12वां ओवर जेएनके पुलिस वॉरियर्स की टीम इस समय गेंदबाजी कर रही है। जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और एमएच चैंपियन पीसता एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब और एचएनडी। अगली गेंद मुजम्मिल खान जो कि तीसरा ओवर, सामने आसिफ मंजूर और इस बार आसिफ मंजूर ने लॉन्ग ऑफ की और उठा करके स्ट्रोक खेला। लॉन्ग ऑफ से बाहर जस्ट बोखारा छक्का। Huge 6, sweet connection, and he deposited it onto the roadside. It's 132 for 2. Sweet shot and nice timing there. It's 132 on the board. Over number 12. It is Muzammil Khan again. This time plays it down to a sweep prop cover, and both the batters scamper through. One more run at it. It's 133 for the loss of 2 over number 12 in progress, and Asim Manzoor moves to 7 up 2 balls. 2 गेंदों से 7 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी वो कर रहे हैं नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे। आमिर सोफी है सामने। अगली गेंद आमिर सोफी के लिए लेग स्टंप पर और उसको ऑन साइड में प्लेस किया। ये देखते हैं कि जब तक खिलाड़ी जा करके काफी लंबी दौड़ लगानी पड़ी, वहां गेंदबाज को खुद जा करके गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन और खाते में जुड़ा और 1 रन के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 134 2 विकेट के नुकसान पर 12वां ओवर। 2 गेंदों का आना बाकी। कश्मीर कप 2024 सीजन 2 मैच नंबर 19, 19वां मुकाबला और आसिफ मंजूर है सामने इस मुकाबले में। ये गेंद इस बार अच्छी गेंद थी, वापस खेला, बॉलर रह करके गेंद को फील्ड किए बगैर किसी रन के। 11.5 134 2 विकेट के नुकसान पर और अच्छी पोजीशन में एक तरफा मुकाबला बना दिया क्योंकि यहाँ विकेट मिला नहीं है, मात्र 1-2 सफलताएं अब तक मिली हैं और रन गति बहुत बढ़िया। एक और लॉन्ग ऑन के ऊपर जस्ट बोखारा छक्का आसिफ मंजूर के बल्ले से। ये दूसरा छक्का उनके बल्ले से और इस छक्के के साथ 140 पे 2। And this one, it's a towering 6 over long on. It's biggest of the lot and biggest of the over, and on to that rooftop, then coming downwards. And as if someone was walking there, pedestrian, and he was shocked. He was in a shock when he heard that noise, that sound, ball hitting the rooftop. Thank you, brother. And that towering blow, that towering 6 takes it to 140. We're done with over number 12. 8 overs are going to come. 48 balls remaining, but it's 140 on the board. What do you think? I believe 240 around that will be the target. देखिए वो लक्ष्य जरूर जहन में होगा क्योंकि keep that in mind. This is the game of glorious uncertainties. वो बात बिल्कुल स्पष्ट है। क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, लेकिन जिस प्रकार से निडर होकर के यहाँ बल्लेबाजी हो रही है, क्योंकि आसिफ मंजूर और आमिर सूफी 2 दिग्गज खिलाड़ी हैं और उनके बाद अगर हम बात करें बल्लेबाजी में, आदिल वानी का आना बाकी है। उसके अलावा आपके पास फैसल डार हैं, आपके पास गुलजार गुली हैं, आपके पास आमिर अली है, आपके पास गौहर लैगी है, तो बल्लेबाजी आपके पास है और वो निश्चित तौर पे 240 तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। एक और रन यहाँ बटोर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। आसिफ मंजूर के पास स्ट्राइक रहेगी और आसिफ मंजूर लगातार आत्मविश्वास के साथ बड़े प्रहार कर रहे हैं। एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास अब तक सफलतापूर्वक। 141 पे 2, 12.1 के बाद। JK Police Warriors leaking, bleeding at the moment. 141 for 2. We are in over number 13. Here is Gavarmal again. This one, has that gone all the way? It has. Over Kokana. That's another biggie. This is captain for you. It's Asim Manzoor. Boom boom goes kaboom. And this time over Kokana. It's 147 and Gavarmala gone for 40. He just 10 shy of his half century here. He's in his 3rd over. He's gonna concede 50. Is he gonna accomplish that here? It looks like in this over as Manzoor is going berserk. He's on to 19 of just 5 balls. Next one, oh, gone flat. Runs. We'll have to wait and watch. I think he releases the ball before going across and sends us in a return and keeps it down to 1. With that single, it's 148 for 2.
halfway stage in over number 13. 148 13वां ओवर। आमिर सोफी अब सामने होंगे 14 पे 12 गेंदों से 29, मात्र 6 गेंदों से 20 रन पे नाबाद है यहाँ आसिफ मंजूर। 1 रन और आमिर सोफी ने बटोर लिया और स्ट्राइक वापस आसिफ मंजूर के पास। 1 रन के साथ ही रन संख्या 149 9 विकेट के नुकसान पे। 12.4 ओवर की गेंदबाजी, 20 पे नाबाद है। 6 गेंदों का सामना किया आसिफ मंजूर ने, 3 छक्के वो अभी तक लगा चुके हैं और एक विस्फोटक आते ही उन्हें इरादे स्पष्ट कर दिए क्योंकि जानते हैं दबाव नहीं है, एक बड़े लक्ष्य तक पहुंचने के लिए इस प्रकार के स्ट्रोक की आवश्यकता है। और ऐसे में अगली गेंद गति परिवर्तन माप लिया, ये चौथा होगा जस्ट बोकारा। जी हाँ, एक और जस्ट बोकारा, चौथा छक्का और 26 पर पहुंच गए। 11 गेंदों से 30 की साझेदारी, 155 2 विकेट के नुकसान पर डेडू रेंजर्स। Partnership is 30 of just 11 balls. Carnage continues and Gavarmala is unable to understand what to do against Asif Manzoor. Big man with fully loaded body, biceps, triceps coming into play. Oh, this one, that's a good delivery. That's a better line. Oh, directed. Would have been Asif Manzoor, man in question. It is coming back for the second with that brace. It's 155. No, it's 157 for the loss of 2. We're done with over number 13. Asif Manzoor, 28 of just 8 balls. 8 गेंद से 28, 4 छक्के उसमें लगाए हैं उन्होंने। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी वो इस समय कर रहे हैं। 7 ओवर का आना बाकी, 157 पे 2। दबाव आप पे है नहीं और ऐसे में खुलकर स्ट्रोक खेल रहे हैं। एक छोर से आमिर सोफी समर्थन दे रहे हैं, दूसरे छोर से आते ही कुछ तेवर दिखाए जरूर आसिफ मंजूर ने। हालांकि पिछले मुकाबले में भी उन्होंने बेहतरीन पारी खेली थी सुल्तान के विरुद्ध और ऐसे में उस फॉर्म को बरकरार रखा है। गजब के फॉर्म में इस प्रतियोगिता में अगर हम बात करें तो टूर्नामेंट उन्होंने अभी तक बेहतरीन पारी खेली और ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार। ये गेंद और इस बार उसको ऑन साइड में प्लेस किया और ऐसे में 1 रन तो जरूर पूरा करेंगे पलट कर। जी हाँ, 1 ही रन मिलेगा और 1 रन के साथ रन संख्या 158, 3.1 ओवर, 34 रन, 1 विकेट। शाहनवाज की गेंदबाजी विश्लेषण। और ऐसे में इन परिस्थिति में अगर हम बात करें तो यहाँ 13.1 के बाद 158 2 विकेट के नुकसान पे आसिफ मंजूर होंगे सामने। 28 पे 8 गेंदों का उन्होंने सामना किया है। शाहनवाज गेंदबाजी कर रहे हैं। देखिए स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। कश्मीर कप का ये कुल मिलाकर 19वां मुकाबला, आज के दिन का दूसरा मुकाबला। पहली बारी आसिफ मंजूर के लिए एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास, जगह बना करके रूम बनाना चाहते थे, सफलता नहीं मिली। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में चली गई बगैर किसी रन के। 158 पे 2, 13.3 के बाद। This is over number 14. We are in 158 for the loss of 2. Asif Manzoor, 28 of just 9 balls. And his partner is on to 16 of 4 balls. This one plays it straight down towards long on. Thank you, brother. Shabir Rishi is here. Brother of legendary Adil Rishi. It's 159 for the loss of 2. We are halfway marking over number 14. Chief organizer is here, Nazi. The next one, oh, this could be tight. Directed, it is. We'll have to wait and watch and Majid is on mood. लगातार यहाँ अच्छे दौड़ का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि सीधा स्टंप्स पे थ्रो पड़ा लेकिन उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा यहाँ डेडू रेंजर्स के बल्लेबाजों पर। 1 रन तो पूरा कर लिया। 13.4, 160 2 विकेट के नुकसान पे। 29 10 गेंदों से आसिफ मंजूर और आमिर सोफी 17 15 गेंदों से 160 रन 2 विकेट के नुकसान पर। 13.4 ओवर की गेंदबाजी। शाहनवाज हुसैन जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्हें 3.4 ओवर में 36 रन खर्चे हैं। 1 विकेट उनको मिला है। आसिफ मंजूर हो गए सामने और ताबड़तोड़ विस्फोटक बल्लेबाज देखने को। इस गेंद को किस प्रकार से वो बाहर भेजने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बार क्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास, गेंद की लाइन को मिस किया। गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में, उनने बिल्स वहां पर भी खेली लेकिन सुरक्षित पिछला पांव आसिफ मंजूर का क्रीज में बगैर किसी रन के। 13.5, 160 2 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद का आना बाकी और ये कुल मिलाकर पारी का 14वां ओवर, इसके बाद 6 ओवर का आना बाकी। और इस बार फिर लेग स्टंप बनाते गेंद को खेला जरूर, अंदरूनी सिरा लगा, फाइनल की ओर गेंद जा रही है सीमा रेखा की ओर। खुद ब खुद यहाँ गेंद की गति कम हुई लेकिन पलटकर दूसरे रन के लिए आसिफ मंजूर और आमिर सोफी। 2 रन और खाते में 162 पे 2। 14 ओवर पूरे हो चुके हैं, 6 ओवर का खेल बचा है। Just 6 overs remaining. 36 balls are gonna come, and we'll have to wait and watch how things will unfold. In next passage of 6 overs, only 6 overs remaining. 36 balls are gonna come, and they require. Oh, sorry, it's inning number 1. But they will try to extend the domination. They will try to put on a show. We have seen 5x. We have seen big shots. We have seen humongous shots coming here and there. Straight down the ground, behind scare on onside.
and behind square on offside. We haven't seen that portion being targeted. Third man and the back for the point. Lesser shots we saw in that portion, in that area, but we have seen the majority of shots down the ground, long off, long on, and that square of the wicket on onside. Well, it's 162 for the loss of 2 after the completion of 14 overs, 36 balls remaining. Change in the bowling. Will it work? And it's going to be new bowler to bowl in place of Shehnabaz Malla, and he's designing the field. Will he be able to bowl to his field? Let's find it out. Where he's gonna pitch it, which way he's gonna pitch it, let's find it out. There is a slip in for, oh, look at that one, takes it on the full and directs it down to the backward of Skeffens for 4. That were brought to you by Just Bukhara. Quality flick shot, and saw that delivery on the pad line, just works it away. Gone fine runs, 4 of them, and that 4 takes it to 166. Bad line, penalized and punished in style. अमिया बुगता वहाँ खराब गेंद थी, लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद थी और उसको चौके में बटोरा वहाँ आमिर सोफी ने। जस्ट बुखारा 166, 2 विकेट के नुकसान पे पारी का ये 15वां ओवर प्रारंभ कर चुके हैं गेंदबाज गौहर हैदर, जो कि अपना पहला ओवर प्रारंभ कर चुके हैं। पहली गेंद पर उनका स्वागत चौके से, डडू रेंजर्स कश्मीर 166। अगली गेंद लेकर के तैयार, ये गेंद आमिर सोफी के लिए ऑफ स्टंप से बाहर, एक और बेहतरीन, एक और खूबसूरत एक्स्ट्रा कवर क्षेत्र की और गेंद सीमा रेखा से बाहर निकलते हुए 4 रनों के लिए। जस्ट बुखारा चौका, और पहले ऑन साइड में और अब ऑफ साइड में ये 2 चौके बटोर लिए हैं आमिर सोफी ने, और आमिर सोफी पहुंच गए 25 पे 17 गेंदों से 170, 2 विकेट के नुकसान पर 14.2 ओवर की गेंदबाजी। 15वां ओवर पारी का चल रहा है। Well, this is over number 15 we're in, but that shot, Nazir, that was a cracking shot. Not trying to hit hard, just ease it up a bit. Next one takes it on the full, but nearly yokes him. Digs it out, dug out nicely. Back to the ball of 170 for the loss of 2. Halfway stage in over number 15. Didu Rangers winning the toss, batting first. Are in complete control, takes it on the full, wide of man, into the extra cover boundary. No need to run for those 4 of them, and once it leapt to the blade, he was damn sure this one is gonna find the fence. 174 पे 2, 3 चौके अब तक इस ओवर से लगा चुके हैं आमिर सोफी। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। 29 पे 19 गेंदों से, और आसिफ मंजूर 29 पे नाबाद 12 गेंदों से, और 19 गेंदों से 29 बनाए आमिर सोफी ने। 174 पे 2, 14.4, 2 गेंदों का आना बाकी, और गेंदबाजी का दायित्व इस समय गौहर हैदर के पास, जो कि 12 रन खर्च कर चुके हैं। अगली गेंद आमिर सोफी के लिए, और इस बार फिर सीधे बल्ले से वापस, खूबसूरत स्ट्रोक। क्या यहाँ चौका मिलेगा? जी नहीं, खिलाड़ी वहां पर पहुंच गए, उन्होंने गेंद को फील्ड कर लिया। 1 रन जरूर, 1 रन के साथ 30 आमिर सोफी 29 पे नाबाद है। आसिफ मंजूर स्ट्राइक लेने की तैयारी, और 23 गेंदों से 50 की साझेदारी। एक और बेहतरीन साझेदारी तीसरे विकेट के लिए डडू रेंजर्स के 2 बल्लेबाजों के बीच। 175, 2 विकेट के नुकसान पर 14.5 ये गेंद, और इस बार हालांकि काफी ऊपर थी ये गेंद, हालांकि नो का इशारा समझते वहां अंपायर का यहां देखना होगा, और क्या ये वाइड का इशारा था? रेस में रन तो जरूर पूरा कर लिया, और रन के साथ ही रन संख्या अब आगे बढ़ती हुई 176 तक पहुंच गए 2 विकेट के नुकसान पर। अभी भी इस ओवर की 1 गेंद का आना बाकी है। 2 विकेट जरूर खोए, और गौहर गेंदबाजी कर रहे हैं। आमिर सोफी इस समय नाबाद है 30 पे 20 गेंदों से। आदिल आसिफ मंजूर इस समय 30 पे नाबाद है, उन्होंने 13 गेंदों का सामना किया, 2 रन जरूर। 177, 2 विकेट के नुकसान पर 14.5 ओवर की गेंदबाजी, और अंतिम गेंद 15वें ओवर की लेकर के तैयार एक विशाल लक्ष्य की ओर इस समय अग्रसर टीम डडू रेंजर्स कश्मीर। अंतिम गेंद गौहर चले आमिर सोफी के लिए, लेग स्टंप पर दिशाहीन गेंद, वाइड होगी ये। रन तो पूरा कर रहे हैं दोनों बल्लेबाज, 2 रन और खाते में जुड़ेंगे, और 2 रनों के साथ रन संख्या 179, 2 विकेट के नुकसान पर 1 गेंद अभी विशेष। You're absolutely right. Wide signaled by Majidhura. Extra run added, and extra ball is coming up. It's 179. Oh, it's a no ball. Free signaled by Majidhura. He says, "Oh, captain, take it on." Look at that one, but he can't middle this one. I think that was a pace off. This is a good ploy. If you know that this lad is loving pace, he's a pace lover. So try to take the pace off, make him toil hard for everything. The way he does well on that occasion, the way he bowled on that occasion. Naziri took pace off the ball, he variated his pace, and Asif Manzoor was unable to put it away. 180 पे 2, 15 पूरे 5 ओवर का खेल पहली पारी का।
और इन बचे हुए 5 ओवर में अब करीब करीब 50 रन जोड़ने का प्रयास जरूर होगा तो 230 के पास पहुंच सकते हैं। गौहर हैदर ने 1 ओवर में 18 रन खर्चे, 180, 2 विकेट के नुकसान पर 15 पूरे। आमिर सोफी 30 और आसिफ मंजूर 31। आने वाले बल्लेबाजों में आदिल वानी, उनके अलावा गुलजार गुली, फैसल डार आपके पास, सामिर अली आपके पास, गौहर लेगी आपके पास और डार जुनैद आपके पास। अच्छी खासी बल्लेबाजी, अंत तक वो बल्लेबाजी कर सकते हैं, बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। अंतिम 5 ओवर का खेल बचा है। डडू रेंजर्स ने 180 बनाए, 2 विकेट के नुकसान पर पहली पारी चल रही है। जेके पुलिस वॉरियर्स की बात करें तो अब तक मात्र 2 सफलताएं प्राप्त हुई हैं और गौहर हैदर ने 1 ओवर में 8 रन खर्चे। नए ओवर की शुरुआत, सामने आसिफ मंजूर, पहली गेंद और इस बार खेला जरूर बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, हालांकि बल्ले के निचले भाग पर लगी और फिर भी गेंद सीमा रेखा से बाहर निकल गई लॉन्ग ऑन पे। जस्ट बोखारा चौका, 184, 2 विकेट के नुकसान पर 15.1 के बाद। Well, then it's 184 for the loss of 2. This is over number 16 wherein here is Sameer Ahmed Mir again, gone for 4 off very first ball. Next one, oh! Look at that! Look at that! Take a look! And that's into the golf club. Huge, high, wide, long and handsome. There is just Bukhara 6. It's 190 on the board. You call humongous, you call monster. It's huge. It's wide, long, like missile gone all the way out of the center. Huge 6. Here he is again. Oh, look at that one! Back-to-back sixes. Asif Manzoor is on song. He is on song, unstoppable at the moment. On the other side, Sameer continues to bleed. 16 of his 3 balls. अरे कुछ भी कहें, कितने भी शब्दों का प्रयोग करें वो कम पड़ जाएंगे। आसिफ मंजूर 2 गेंदों से 2 छक्के, अगली गेंद लेकर के एक और, लेकिन इस बार सफलता नहीं मिली। गेंद की लाइन को मिस किया और गेंद वही पास में लुढ़की बगैर किसी रन के। 196 पे 2, 15.4 और 18 गेंदों से 47 पे है। आसिफ मंजूर नाबाद है, तेज तरार विस्फोटक पारी और अब तक 6 छक्के वो लगा चुके हैं। आप कल्पना कर सकते हैं क्या बेहतरीन बल्लेबाजी। एक बार ऑफ साइड से ये गेंद, उड़ता हुआ स्ट्रोक, एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर, अर्धशतक पूरा यहाँ आसिफ मंजूर का। 19 गेंदों से 51 पे नाबाद। Skipper hits quickest, he is quickest to 50. It's a fastest 50, 19 ball half century and round of applause. He soaks in that round of applause, but he didn't wave his bat towards balcony and towards the dugout. But everyone there acknowledges him with the round of applause that you're up to 50 now. Next one keeps it away on upside. Just a single and he will keep the strike for next over. 2 is up. It's 201 for 2 after 16. 4 ओवर का खेल, 201, 2 विकेट के नुकसान पर 52 बासित अकबर ने बनाए, 52 पे आसिफ मंजूर नाबाद और सरशील ने भी 40 रनों का योगदान दिया। आमिर सोफी समेत 30 पे नाबाद। तो देखिए आज हर एक बल्लेबाज ने अपनी भूमिका निभाई है, जिसके चलते समय एक विशाल लक्ष्य 201, 2 विकेट के नुकसान पर 16 पूरे, 4 ओवर का आना बाकी है। और ऐसे में अगर समीर अहमद मीर की बात करें, अपने पहले ओवर में 21 रन खर्चे, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी उनके बाद। अंतिम 4 का आना बाकी, 201 पे 2। 200 is up. It took 16 overs to get there, and now they're having 4 overs at their disposal with 8 wickets in hand. But the 2 men in the middle, Amir Sofi is a well settled. He's on to 30 of 20, and his partner, he's got his eyes in on to 52 of just 20 balls. Pressure begins. First ball, little back away, then hits it straight down towards long off. Not happy with his short selection there. He wanted something special out of it, but it goes down towards long off. A single is all he's gonna get. 1 रन और 201 के बाद अब 202, 2 विकेट के नुकसान पर 16.1 अगली गेंद। इस बार आमिर सोफी हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक, एक टिप्पे के बाद गेंद सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका, 206, 2 विकेट के नुकसान पर 16.2 ओवर की गेंदबाजी। लगातार इस समय प्रहार किए जा रहे हैं, दबाव है नहीं यहाँ पर बल्लेबाजों पर, खुलकर स्ट्रोक खेल रहे हैं। और ऐसे में गेंदबाजों पर पूरी तरह से जो है वो संघर्ष हो रहा है। इस बार फाइन खेले जरूर हैं, 1 रन तो जरूर मिलेगा दोनों बल्लेबाजों को। आमिर सोफी 1 रन बटोरने में सफलता प्राप्त की, 207, 2 विकेट के नुकसान पर 16.3 और आसिफ मंजूर सामने होंगे 53 पे 21 गेंदों से। And look at his innings. He's on to 53 of 21 balls. What an innings! What a knock! Oh, look at that one. Plays it with a straight bat. That was a good delivery. Nicely directed one. Right on money. Straight away.
Only he could manage, keeps it away, straight to long off. 208 for 2 over number 17 in progress. Amir Sofi on strike. This one goes at it, hits it onto the onside. In front of square on onside, there is Shahid Nawaz. Send us in a return, but can't prevent that single. That brings Asif Manzoor back on strike again. And he will keep the strike. It's 209. One last time in over number 17. Gawar to Asif Manzoor. Oh, look at that one. Gorgeous. Inside out into the extra cover boundary for 4. With that, just Bukhara 4. 17th over is done and dusted. It's 213. Is it? Yes, 213 for 2. 17 gone. 17 पूरे 213 2 विकेट के नुकसान पर आसिफ मंजूर इस समय 58 पे 23 गेंदों से, आमिर सोफी 35 23 गेंदों से और गौहर मल्ला ने 3 ओवर में 50 रन खर्चे हैं और ऐसे में अभी भी 3 ओवर्स का आना बाकी और आपके पास बल्लेबाजी अच्छी खासी है, क्योंकि अब यहाँ बल्लेबाजी की अगर हम बात ना ही करें तो वो शायद बेहतर रहेगा, क्योंकि इन परिस्थितियों में 213 2 विकेट के नुकसान पर डडू रेंजर्स कश्मीर ने बना लिया। नेवर की शुरुआत आमिर सोफी के बल्ले से, लीजिए एक और जस्ट बुखारा छक्के का निर्णय आता हुआ, एक और खूबसूरत स्ट्रोक 219 पे 217.1 के बाद। That's another big shot. Goes and connects, fetches it from wide of the off and belted it over Skylark for 6. Superb shot, and Gawar Malla is on the receiving end here. First ball 6, welcomed with a 6. Next one, again shipping for that lofted drive, but up the cue and doesn't middle. Nonetheless, picks up a single, and that will make sure that Asif Manzoor is on strike again, and he will keep the strike. It's 220 on the board, Nazir, with 2 overs remaining after this one. To be precise, 16 balls remaining. It looks like 250 is loading. Here is Gawar Malla to Asif Manzoor. Hits it straight. There is a man on the bounce. So no harm done. And with that single, it's 221. Overthrows. Oh, misfield. And look at that. He's coming back for the second. It's 222. 222 2 विकेट के नुकसान पे और इन परिस्थितियों में खराब क्षेत्र रक्षण का प्रदर्शन और 222 पे 2 17.3 के बाद ये गेंद, और इस बार हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक, कुछ और खिलाड़ी आ रहे हैं, रोक लिया उन्होंने, लेकिन 1 रन लेने से नहीं रोक पाए दोनों बल्लेबाजों को। 223 2 विकेट के नुकसान पर 17.4 ओवर की गेंदबाजी हुई है। 42 पे नाबाद है आमिर सोफी और आसिफ मंजूर 61 पे नाबाद है 25 गेंदों से। सामना करने के लिए तैयार 18वां ओवर पारी का चलता हुआ और पूरी तरह से आज हावी बल्लेबाजी, किसी भी गेंदबाज को यहाँ उस प्रकार की सफलता नहीं मिली, मतलब 2 सफलताएं अब तक मिली है। इस बार आमिर सोफी हवा में उड़ाया, दूरी दी और जस्ट बुखारा छक्का लपेटा अपने लिए और अपनी टीम के लिए। A 6 to end the over. Partnership is 104 of 42 balls. They use it 7 overs, and it's partnership 102. Gawar Malla is unable to understand what to do again as the likes of Amir Sofi. Oh, look at that one. Sheer class and balance. Gorgeous into the wide of extra cover fence for 4. Just Bukhara 410 the over. It's 233 for 2 after 18 overs. Partnership is 106 of 43. पहला विकेट 90 पे, दूसरा 125 पे और इस समय 233 रन आप कल्पना कर सकते हैं, यानी कि यहां से 108 रनों की अभिजित साझेदारी, नाबाद साझेदारी तीसरे विकेट के लिए आसिफ मंजूर और आमिर सोफी द्वारा। क्या लाजवाब, बेहतरीन, खूबसूरत और आकर्षक बल्लेबाजी दोनों छोर से, चाहे वो आमिर सोफी हो चाहे वो आसिफ मंजूर हो। आमिर सोफी ने अर्धशतक पूरा किया, 27 गेंदों से लाजवाब बेहतरीन अर्धशतक किया पारी, 52 रन उन्होंने बनाए, नाबाद है 61 पे नाबाद है 27 गेंदों से 25 गेंदों से। आसिफ मंजूर पहली गेंद और एक बार फिर हवा में उड़ता हुआ स्ट्रोक और गेंद सीमा रेखा से बाहर, एक और जस्ट बुखारा छक्का आसिफ मंजूर के बल्ले से। Nazir, look at the sound we heard out of the center. What's going on? And it is on to that LMV and bulletproof vehicle there. And the next one, oh, it's in the air. Who's gonna take this? Is he going to catch this? Oh no, he puts down. What's going on, fielder? He puts down a dolly. How you can break that stand and how you can back your bowler as you're dropping lollipop after lollipop, dolly after dolly, gap, a percher gone down. It's 241 for the loss of
2 wickets. We're in over number 19. अभी भी 10 गेंदों का आना बाकी है इस ओवर की 4 और फिर उसके बाद अंतिम ओवर और 18.2 ओवर में 241 2 विकेट के नुकसान पर अगली गेंद आसिफ मंजूर के लिए चले गेंदबाज इस बार फिर लॉन्ग ऑफ की ओर पीछे खिलाड़ी लेकिन नहीं पहुंचे गेंद सीमा रेखा से बाहर एक और जस्ट मौका छक्का 247 2 विकेट के नुकसान पे 247 dealing in sixes here. Not ready to scamper through. It's 247 for 2. Here he is again to Asim Manzoor. Manzoor sends it over wide of long on. Another huge hit. Another lusty blow. Middle picked bounce out of it. And there is just Bukhara 6. It's 250 comes up, 253 for the loss of 2. Here he is again. This one it's in the air. Should be taken. Oh, he dropped! What's going on? Can you believe? Can you believe? Bizarre from field there. Should have been taken. And look at that catch gone down. Can you believe? And look at the roar from the crowd. They're enjoying each and every moment here. Should have been taken. They're beating the drums. बिल्कुल खराब क्षेत्ररक्षण जिसके चलते इस समय पूरी तरह से दबाव में है इस बार आमिर सोफी ने उठाया यहाँ खिलाड़ी तैनात जी नहीं गेंद सीमा रेखा से बाहर अंपायर के इशारे की प्रतीक्षा करनी होगी और अब जाकर के निर्णय एक और जस्ट मौका छक्का ओवर समाप्त हुआ 19 ओवर की समाप्ति के बाद आसिफ मंजूर 82 पे नाबाद है और उनके साथ 58 पे आमिर सोफी है 262 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर का आना बाकी पहली पारी के आधार पर डेडू रेंजर्स कश्मीर Last over remaining. Over number 20 is coming up. But look at the scorecard. It's showing, it's displaying 260 for 2. $260 for 2 after 19. 1 over remaining. Taken to the cleaners. And this lad, he thought we're in over number 20. And they want some respite. But it's 260 for 2. And it is 260 on the board. Amir Sofi on to 58 of 28 and Asim Manzoor 82 of 30. Nazir, can we expect 100 for Asim Manzoor in this match? He's on to 82. He's 18 away and 1 over remaining. और देखिए जिस प्रकार से वो बल्लेबाजी कर रहे हैं जिस प्रकार से अभी तक उन्होंने वो हार्ड हिटिंग की है और अंत में उन्होंने एक पिंच हिटर का रोल अदा किया है जब से वो बल्लेबाजी के लिए आए हैं और करीब 9 छक्के वो अब तक लगा चुके हैं और इन परिस्थितियों में 262 विकेट के नुकसान पर 19 पूरे अंतिम ओवर का खेल बचा है यहाँ और इन परिस्थितियों में देखना होगा यहाँ से आखिरी 6 गेंदों का आना बाकी और इस बचे हुए ओवर में 18 रन दूर है आसिफ मंजूर अपने शतक से क्या वो पूरा कर पाएंगे हालांकि उनमें क्षमता है आमिर सोफी नॉन स्ट्राइकिंग छोड़ पे आसिफ मंजूर स्ट्राइक की तैयारी कर रहे हैं this lad the way he batted today police clueless unable to understand what to do and would like to thank JK Sports Time and its blood sponsors Anthem Sports India Fashion Feast the Shining Star Papur MHM multi-brand by Rafimani we got Hamdan Hurricanes the importers and the exporters H&D complete kids wear Natipura Srinagar and then coming back to the game it's 260 for 2. This is the highest score in the tournament we have seen that belongs to Dedu Rangers. 260 is the highest first inning score. अजय बिल्कुल इससे पूर्व 254 का था और अब जाकर के ये सर्वाधिक स्कोर इस प्रतियोगिता के अब तक के 19 मुकाबलों में डेडू रेंजर्स द्वारा किसी भी टीम द्वारा फिलहाल अंतिम ओवर 262 विकेट के नुकसान पर पहली गेंद आसिफ मंजूर के लिए इस बार अच्छी गेंद थी चकमा दिया यहाँ पर और गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्ताने में 19.265 की दुकान बाकी. But Kaleem Khan is doing wonders here 3.1 or 1 mad and none for 18. Look at his figures. Wonderful prospect. And look at other bowlers. मनवर तीसरे ओवर में गेंदबाजी कर रहे हैं अभी तक थे कहाँ वो जिस प्रकार की उन्होंने गेंदबाजी की है और एक बार फिर अच्छी इस बार देखिए वहां पर गति में परिवर्तन किया. This is so cute, nice, tight line, and this is Kaleem Khan for you. If he's taken on in the remaining part of over, but I'm going to salute this lad the way he bowled today. शानदार गेंदबाजी है जहां रनों का अंबार 260 वहां रन गति 18 रन खर्चे हैं तो मैं समझता हूं प्रशंसा करनी होगी. ये कोटे को पूरा करने जा रहे हैं पारी का ये अंतिम ओवर है लेकिन जितनी भी प्रशंसा करें इस गेंदबाज की उतरी का अगली गेंद और इस बार खेला जरूर सीधे लॉन्गों पे खिलाड़ी के पास उन्होंने सफाई के साथ गेंद को फील्ड कर लिया. 1 रन आसिफ मंजूर को मिला 3 गेंदों से 1 रन अंतिम ओवर में 261 पे 3 गेंदों का बाकी. And look at this lad Nazir the way he bowled. Not given an opportunity to Asif Manzoor was on to 82 now moves to 83
And he bowled 3 balls, 2 dots. Here is Kaleem again to Amir Sophie, and Sophie hits this one onto the offside. There is field quickly onto the ball. Only a single. 4 balls, 2 singles. What an over, that to over number 20. 3.4 ओवर 1 मेडन 20 रन, भले ही उनको सफलता ना मिली हो, लेकिन पूरी तरह से उन्होंने एक प्रभाव छोड़ा है। Another finding of JK Sports Time and Kashmir Cup. That's Kaleem Khan for you. कोई दौरा ही नहीं, बहुत बढ़िया गेंदबाजी आज कलीम ने की है। और ऐसे में 5वीं गेंद लेकर के आसिफ मंजूर के लिए फिर बहुत बढ़िया गेंद नीचे रहती है। इस बार गति में परिवर्तन किया, भापा बल्लेबाज को मिश्रण किया, छक्का दिया आसिफ मंजूर को, जमे बल्लेबाज को 262, 2 विकेट के नुकसान पर 5 गेंदों से 2 रन खर्चे हैं। But look at Kaleem Khan. He's bowling the 20th over. He's in his 4th over. 3.5, none for 20, including a maiden. Last ball is coming up. Who's going to win the battle on the final ball? Asif Manzoor hits it straight down to where it's long on. Only a single. Brilliant over this. Just 3 singles of over number 20. Kaleem Khan, you beauty man. We're done with inning number 1, and Deru's finish on 263. 264 is the target for Police Warriors. We'll be back shortly after the commercial break. It's going to be action coming your way, chase coming your way. Join us for the chase in a while.